Hello, Suresh. How are you? I'm good. I'm good. How are you? I'm good. Welcome to the live session with Rion Energy. I'm really glad that you have given us this time. And we felt as a company who supports renewable energy, who supports the future vision. So I believe that COVID is definitely impacting how we think of our future. It has impacted our last year completely. It has impacted our current year and for many futures to come. So, what is your feedback on how this COVID situation is right now in Pakistan and even globally, how it's impacting our lives? Thank you very much, firstly, for having me on your platform. It is great that you guys are working for renewable energy. It is much needed uh, in this era and in these years where nobody really cares how people should be taking care of their environment. You guys are working towards this, and this is great, and I'm glad to be a part of your show. So basically, firstly, I would like to say that uh, there are a lot of uh, elements to it. If we think about how the world is moving, how the world is going forward, there is a lack of empathy. And if we talk about empathy, we need to talk about everything that we see around us, and we can clearly see how we are not really bothered towards our fellow human beings and towards the people around us, and how we are actually just taking care of ourselves, and we're just focusing on how we are going to get better. We are not really focusing on our environment. We are not really focusing on our people, and that was majorly the purpose of this group as well. We should think about the people who are actually in trouble and crisis, and this should be the main focus of people around the globe. Okay, so I completely agree, but I would want to know what prompted you to start COVID Warriors ka page initially. Like, what So, was the reason behind it? yeah, so basically, the group started in the last week of May, and at that time, we were having a lot of plasma trials in our country, and it was being advocated as one of the treatments of COVID. So, I wanted to have a group where we can have all the corona recovered people, and there should be a national forum where they can connect themselves to the currently affected patients. And since the plasma Mhm. trials were going on, every doctor and every hospital was going for it, and they were asking for COVID recovered people to pop up and help their friends and help their brothers and sisters across Pakistan who are actually in trouble. So the purpose of this forum was to connect plasma donors to the currently affected patients initially. But when we moved on, it was into a lot of other dimensions. इसमें एक डायमेंशन की अगर बात करें तो हमारी फूड डिलीवरी एक स्टार्ट की गई हमारे फोरम के कुछ मेंबर्स की वजह से। ये 3-4 मेंबर्स हमारे बहुत मेजर हैं, उनमें उर्जे फातिमा इज वन ऑफ देम, बशमा इज वन ऑफ देम, एंड देन मानूर शेख इज वन ऑफ देम। इन्होंने बहुत काम किया फूड डिलीवरी पे। देन हमारे फोरम से ही बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्री डोनेट करने शुरू कर दिए, सो दैट पीपल कैन एक्चुअली गेट हेल्प फॉर फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जबकि मार्केट्स में ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको 40-45,000 के मिलते हैं। So the purpose was to connect all these people, and there was no national forum, so we made that one, and इसका मकसद जो है वो बेसिकली यही था कि सपोर्ट किया जाए इस वक्त कोविड क्राइसिस में जिस तरह की भी सपोर्ट दी जा सके।
सही बात है। इंडिया में अभी जो सिचुएशन है, इवन ग्लोबली जो ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस हैं एंड एवरीथिंग, so that's really alarming, and I think it's important that we all as a nation like get together and do something like this. अच्छा, so मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी हवाले से है कि अब हम लोग सब ईद गुजार रहे हैं, हमारी ईद उल फितर है रमजान के बाद, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से ईद गुजारें, बट कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए गुजारें। तो इस बिल्कुल पे ठीक। सबसे पहला सवाल ये आता है कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें क्या मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए कि हम एक सेफ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से ईद गुजार सकें। ओके, सो बेसिकली हमारे यहाँ एक अवेयरनेस का इशू इतना नहीं है। अवेयरनेस के बाद इग्नोरेंस का इशू बहुत ज़्यादा है कि लोग डिनाई करते हैं कि ओके, कोविड की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी। पीपल एक्चुअली डोंट रियली नो कि या कोविड जो है वो उनको भी उतना बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है जितना वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत बुरा अफेक्ट करके गया था। यहाँ पर हमारे यहाँ एक डिनाई करने का कल्चर है, और वो कल्चर जो है वो हमारी एलीट क्लास से लेके लोअर क्लास तक हर किसी में पाया जाता है। एंड दिस इज प्रोबेबली इनबिल्ट, प्रोबेबली सब कॉन्टिनेंट का इशू है, या आई गेस ये ग्लोबली इशू है। ग्लोबली इसको डिनाई किया जाता है। जो डिनाई करता है वो समझता है कि उसको कोविड हो नहीं सकता। अब उसको अगर आम खांसी या जुकाम भी होता है तो वो उसको डिनाई करता है कि मुझे कोविड नहीं हुआ, मुझे सीजनल कोई खांसी हुई है, या उनको कोई सीजनल कोई फ्लू हुआ है। तो अगर इस तरह के डिनाइल में रहते हैं तो उनकी जो सिचुएशन है वो बढ़ती जाती है, वो बिगड़ती जाती है, और देयर कम्स अ टाइम जब वो बिल्कुल हाथ से निकल जाते हैं, उनके लंग्स एक्चुअली डैमेज हो चुके होते हैं, एंड देयर इज नो काउंटर टू इट। एंड डॉक्टर्स के पास भी उस वक्त जाया जाता है जब बिल्कुल सिचुएशन बिगड़ चुकी होती है, एंड डॉक्टर्स जब हाथ खड़े कर देते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ब्लेम डॉक्टर्स पे भी डाल दिया जाता है कि इन्होंने हमारे पेशेंट को सही तरह देखा नहीं। जबकि अक्सर पेशेंट्स की गलती अपनी होती है कि वो बहुत लेट जाते हैं। इसकी सबसे पहले एक्सेप्टेबिलिटी का इशू है। ईद पे अगर हम लोग ये सिर्फ सोच लें कि कोविड हो सकता है तो हम शायद बहुत सारे लोगों को मिले ही ना। और अगर हमें ये एहसास हो जाए कि कोविड होने के बाद हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस की तरफ भी बढ़ सकते हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी बिगड़ सकती है कि हम शायद इस दुनिया में ही ना रहें इसके बाद, तो इस हद तक सोचना बहुत ज़रूरी है। पीपल डोंट रियली विजुअलाइज के डेथ कैसे हो सकती है उनकी। हर कोई दूसरे की डेथ को समझता है कि अच्छा उसकी हो सकती है, उसकी हो सकती है। अपने ऊपर जब बात आती है तो हम सोचते हैं कि हमारी हो ही नहीं सकती। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज कि हमारे यहाँ जो मर्जी कर ले गवर्नमेंट, जो मर्जी लॉकडाउन लगा लें, जितना मर्जी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल इशू कर दे, जब तक घरों के अंदर ये अवेयरनेस और एहसास नहीं होगा तब तक लोग नहीं रुकेंगे, एंड देयर वोंट बी अ काउंटर टू इट। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी एक चीज है कि इसके ऊपर हमारा मीडिया भी बहुत अग्रेसिव रहा है। हमारे यहाँ फोन कॉल्स पे भी हमें एक रिंगटोन सुनाई देती है जिसमें हमें कॉन्स्टेंटली एक अवेयरनेस दी जाती है। आप अगर उसके अल्फाज पे गौर करें तो उसकी टोन और उसकी जो हार्शनेस है वो उसी से ही आइडिया हो जाता है कि गवर्नमेंट इस वक्त किस तरह की क्राइसिस से गुजर रही है। तो वी रियली नीड टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। जब कुछ गवर्नमेंट कहती है तो गवर्नमेंट ने अपना फायदा नहीं देखना होता, गवर्नमेंट ने हमारा ही फायदा देखना होता है, एंड पीपल रियली नीड टू थिंक इट दिस वे। ये हमारा फायदा है, हमारी फैमिलीज इंटैक्ट रहेंगी, and if people actually follow all the SOPs on Eid and they don't really meet their families, and even if they're meeting तो उन्हें गले ना मिले, उन्हें अगर ओपन स्पेस है तो ओपन स्पेस में जाके बैठ जाएं। कोशिश यही करें कि अगर वो सामने जा रहे हैं तो मास्क लगा कर ही बैठें। इस तरह अगर करेंगे तो बचत रहेगी। अदरवाइज फिर वही बात है कि आ बैल मुझे मार के बस ठीक है, कोविड है तो मैं क्या करूं, मुझे हो जाता है तो इट डजंट रियली मैटर टू मी। ओके, सो वैसे बेसिकली सिम्टम्स हमारे इनिशियली क्या होते हैं जो हमें देखने चाहिए? खांसी बुखार लोगों को हो जाता है, बट दे डोंट कंसिडर इट एज कोविड। दे आर लाइक कि नहीं, हमें फ्लू है, हम घर पे दवाइयां खाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट?
कि सिम्टम्स जो हैं वो कितने सीरियसली लेने चाहिए, कौन से सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं, इज इट लॉस ऑफ स्मेल दैट गिव्स अस द बेस्ट आइडिया कि कोविड हो गया है? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बहुत सारे ऐसे लोग ये पूछते हैं जब उन्हें बुखार हो और खांसी हो जाती है, उसके बाद वो ये मुझसे पूछते हैं कि जी हमारी टेस्ट और स्मेल तो बिल्कुल इंटैक्ट है, तो हमें तो कोविड नहीं है, इसका मतलब। आपने देखें, आपने एक सीजन देखना है। अगर तो बहुत सर्दी चल रही है और अगर कोई आपकी कोई ऐसी अनयूजुअल सी चीज है कि वहां पर अगर आपको बुखार एकदम हो गया तो फिर कोविड हो सकता है। लेकिन अब जब सबको आपको नजर आता है कि अच्छा चलें ठीक है, एक सीजन ऐसा है जिसमें सबको खांसी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, तब आपको वो जुकाम खांसी बुखार होता है, तो आपको खुद ही पता होता है कि ये किस तरह का बुखार है, किस तरह की खांसी है। एंड लेट मी टेल यू, जिस जिसको बुखार हुआ है, जिस जिसको बॉडी पेन्स हुई हैं इसमें कोविड में, और जिस जिसको फ्लू हुआ है, वो आम खांसी जुकाम बुखार की तरह नहीं हुआ। इट वाज वेरी डिफरेंट। पीपल हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड दिस एंड दे हैव रिटन दिस इन द ग्रुप एज वेल कि ये जब होता है तो इंसान को पता चल जाता है कि मुझे कुछ और चीज़ है, दिस इज नॉट रियली फीवर एंड नॉर्मल कफ। वो डिनायल होता है, वो आपकी साइकोलॉजिकल डिनायल है कि आप उसको मानते हैं कि मेरा ये आम जुकाम और खांसी है। इसमें जो सिम्टम्स का गौर करना ज़रूरी है वो आपके मेजर यही है कि आप ज़्यादा आपको वीकनेस हो रही है, आपको बुखार कितना बुखार हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि बुखार का होना एक इन्फेक्शन की अलामत होती है। तो अगर कोई भी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एंट्री हुई है तो बुखार आपको हो सकता है। अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में तो आपको बुखार हो सकता है। अब बुखार की कोई तो वजह होगी। अब जब हो गया बुखार, तो वाई डिनाइंग इट, मतलब उसको डिनाई करने का पर्पस नहीं मुझे समझ आता। जस्ट विजिट द डॉक्टर। अगर वो कहता है कि नहीं जरूरत तो फिर नहीं जरूरत। अगर आपको डॉक्टर कह देता है कि जी जरूरत है, आप कोविड का टेस्ट करवा लें, या आइदर को, अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि 4-5 सिम्टम्स को अगर गौर करें, एक बुखार, खांसी, जुकाम, आपकी बॉडी वीकनेसेस और फ्लू। ये फ्लू के अलावा हमारी हाँ मेजर हमारे यही सिम्टम्स हमें मिलते हैं। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। इसमें अगर हम इन सिम्टम्स के होते हुए इनमें से कोई भी सिम्टम हो, और अगर आपको पता हो कि आपका किसी कोविड के बंदे से इंटरेक्शन हुआ था जो कोविड पॉजिटिव था, तो कोविड के पीसीआर करवाने की हद तक ठीक है, इट इज योर चॉइस, बट उसको कंसिडर करें कि वो कोविड ही है। और उसको कोविड अगर हुआ हुआ है तो उसकी जो उसका जो प्रोटोकॉल है वो ब्लड का एक प्रोटोकॉल होता है। ब्लड में आपने सीआरपी का एक टेस्ट करवाना होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सो बेसिकली दिस टेस्ट शोज के इन्फेक्शन कितना है। सी रिएक्टिव प्रोटीन के बाद आप अगर ये एक ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसमें कोई मल्टीपल कोई और इन्फेक्शंस भी हैं या कोई और मसले भी हैं, तो उनमें मजीद टेस्ट जो हैं वो डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं कि ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप सीआरपी के बाद डी डाइमर, फेरेटिन, सीबीसी और ईएसआर, फिर बाद में एक स्टेज आती है जब IL-6 का लेवल भी दिया जाता है, और इसमें फिर जब स्टेरॉइड्स लगते हैं तो LFTs, RFTs भी चेक किए जाते हैं। ये सारे टेस्ट जो हैं ये बेसिकली पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से होते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स आए हैं तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज गेट टेस्टेड। टेस्ट में नेगेटिव भी आता है तो अगर सिम्टम्स हैं तो आपको आइसोलेट करना ज़रूरी है, ताकि आप एटलीस्ट अगर कोविड पॉजिटिव भी हैं तो आप किसी को स्प्रेड ना करें, कोई और ना आपकी वजह से अफेक्ट हो। और आई थिंक अगर किसी को इनमें से कोई भी सिम्टम आ जाए तो दे शुड रियली आइसोलेट, और इसको कोविड की तरह ही ट्रीट करें, इसको आम खांसी और जुकाम की तरह डिनायल में ना रहें। या तो आपको आपकी हिस्ट्री इतनी क्लियर पता हो कि आपने खाने में कोई बहुत खट्टी चीज़ खाई थी, या कोई आपने कोई बहुत ठंडा पी लिया था, या आपको 100% इस बात की गारंटी हो कि हाँ मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो इस तरह का है कि मुझे इस तरह की चीज़ें होती ही रहती हैं ऑफ एंड ऑन, तो इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन then again the best thing is कि denial might really kill you। मतलब आप अपने आप को खुद
सुसाइडल मिशन पे जा रहे हैं, तो सुसाइडल मिशन पे जाने के बजाय ये कि बेहतर है डायग्नोज करें एंड देन जस्ट रूल इट आउट, उसको खत्म करें, उसको उसकी कहानी खत्म करने के बहुत तरीके हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी है साइंस की भी, और कामयाबी है हमारी मेडिकल की फील्ड के सारे लोगों की भी, कि हमें स्टेरॉइड्स और हमें एंटीवायरल की प्रेजेंस मिली है, और इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो अर्ली ट्रीटमेंट्स भी होना शुरू हो गए हैं। काफ़ी हद तक लोग अब रिकवर कर जाते हैं इफ़ यू गो अर्ली। लेकिन जिन्होंने डिनाइल किया है कि नहीं नहीं मुझे कोविड हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही है, ये तो कोई आम खांसी है, वो बहुत बुरी तरह फंसते हैं। वो फिर इस तरह के फंसते हैं कि डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं। ठीक है, so like I believe that testing is the best bet that we can take as of now. Yep. Consult a doctor if there is any symptom that is close to COVID. It's extremely important that we take care of us and everyone around us, because this is a disease that spreads and we can't take it lightly. Yep. Acha, so there is a question that one of our viewers has asked us. What are the odds of the Indian variant affecting Pakistan and how prepared are we? Odds of the Indian variant affecting Pakistan. Yeah. The Indian variant that's going on, and it's very, very deadly and. Okay, so पाकिस्तान में एक समझ लें कि एक तरह की ब्लेसिंग है कि हमारा इंडिया के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से हमारी को बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं आती। अब एक उसमें एडिशन ये, लेकिन इंडियंस आर गोइंग टू दुबई, इंडियंस आर मूविंग टू यूके एज वेल, वो वहाँ से कहीं से भी क्रॉस तो हो सकता है। इस वक्त हमारे यहाँ मेजॉरिटी प्रेजेंस जो है वो यूके के वेरिएंट की है। हमारे यहाँ जो स्टडीज़ हैं, चौथाई लैब ने एक रिसर्च की है, उसके ऊपर भी उन्होंने अपने सैंपल्स टेस्ट किए हैं, तो आउट ऑफ 62 सैंपल्स 60 में यूके वेरिएंट है। तो अभी इस वक्त डोमिनेंस यूके वेरिएंट की है, बट अगर हमारे यहाँ इंडियन वेरिएंट आए तो उस वक्त तक हमारी वैक्सीनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे शहरों के अंदर कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी होगी। अगर वैक्सीनेशन हुई होगी तो डेफिनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बचेंगे, लेकिन अगर हमारे यहाँ वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलती रही जिस रेट पे आजकल चल रही है, तो फिर हमारे यहाँ क्राइसिस बहुत बड़ा आ सकता है। बट इसमें एक प्लस पॉइंट ये है, आई वाज डिस्कसिंग दिस विद डॉक्टर तनवीर सलाम, हु इज अ वेरी फेमस पल्मोनोलॉजिस्ट इन लाहौर। उन्होंने ये भी एक जिक्र किया था कि हमारे यहाँ एक लक हमारी ये है कि हमारे रमज़ान में लोग और उससे पहले भी नमाज और वज़ू वगैरह के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। तो इफ़ यू आर एक्चुअली डूइंग ऑल ऑफ दिस, तो उससे आपकी जो क्लैरिटी ऑफ नोज एंड आपकी जो सजदे की पोजीशन में जाना, और ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक्चुअली दे प्ले अ रोल इस सारी चीज़ों को मैनेज करने में। और एंड this is somehow you can say कि the beauty of Islam as well, कि हमारे यहाँ हमें कुछ नेचुरल कुछ तरीके दिखाए गए हैं जो हमें वैसे हाइजीन कॉन्शियस रखते हैं। अगर हम हाइजीन कॉन्शियस रहें, हम वजू करते रहें, तो वी कैन डेफिनेटली एटलीस्ट डिक्रीज द रिस्क ऑफ कोविड। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इस वजह से बचत भी हो जाती है। और ये जो लोगों को कहा जाता है कि प्रोनिंग करें, कोविड में जब प्रोनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, प्रोनिंग का मतलब होता है कि आपने उल्टा लेटना होता है, आपने जिस तरह आपकी जो डायरेक्शन है इट इज टुवर्ड्स द ग्राउंड, आप इस तरह से लेटते हैं एंड फिर आपके जो चेस्ट है वो क्लियर होता है। तो प्रोनिंग अगर इफेक्टिव बहुत ज़्यादा ना हो तो डॉक्टर ये कहते हैं कि सजदे की पोजीशन में जाएं, ताकि आपके लंग्स के अंदर से जो म्यूकस है वो थोड़ा कम होता है, जो उसके अंदर जमा हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग जो आई गेस वी शुड ऑल रियली लर्न फ्रॉम इट, कि हाइजीन इज द की। हमें कहा जाता है कि हाथ धोएं, हमें कहा जाता है कि हाथ ना मिलाएं इस वक्त। तो ये सारे फैक्टर्स हमें थोड़े से इस वक्त देखने पड़ेंगे, then we can definitely survive this. And Indian pandemic जितना बुरा वहाँ पर आया हुआ है, उनकी यहाँ आबादी और उनके यहाँ वैक्सीनेशन कम होने की वजह से भी आया है। वी आर लकी इन अ वे कि अभी उनका चल रहा है एंड अभी पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से नहीं आया, तो अभी वी हैव टाइम टू गेट वैक्सीनेटेड।
अगर हम लोग वैक्सीनेशन पे तेज कर लेते हैं काम और हमारे मेजर सिटीज को हम लोग किसी ना किसी तरह वैक्सीनेट कर लेते हैं, देन वी कैन डेफिनेटली curtail the risks of COVID काफी हद तक। ओके, या वेंटिलेटर की सिचुएशन अभी जैसे पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे थे रिसेंटली, अभी आई हर्ड कि थोड़े से कम हुए हैं, विच इज़ काइंड ऑफ अ कंफर्ट फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप ईद के लॉकडाउन भी हमारे लिए इफेक्टिव हो, हम लोग ईद रिस्पॉन्सिबली मनाएं सब, और हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनसे ऑनलाइन मिलें, वर्चुअली मिलें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस लॉकडाउन को एज अ जितना इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं करें। अच्छा, तो अब एक और सवाल ये है कि काफी सारे लोग होते हैं जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं और जो घर पे होते हैं, who do not go to the hospital because ऑक्सीजन लेवल्स उनके बेहतर होते हैं। So how to take care of those True. patients? Because most of the time I've actually looked around myself also. There have been a lot of multiple COVID cases जहाँ पे the only idea that the family gets in is to rush them to the hospital. So you know, इससे ये भी होगा कि हॉस्पिटल्स में पहले इतने कोविड केसेस हैं, they're already flooded with so many patients and oxygen ventilators सब occupied हैं. So you know, it's just adding more burden when not so serious people are also rushing towards hospitals. So what is your feedback on that? So basically the idea is कि अगर हमारे यहाँ बेसिकली तो यही देखा जाएगा कि हमारे यहाँ जो ये जितने जितने आप क्राइसिस का जिक्र कर रही हैं, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर शॉर्टेज, और इसके ऊपर जिस तरह हमारे यहाँ ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाउ वेंटिलेटर शॉर्टेज इज देयर एंड देन उसका इम्पैक्ट क्या है। घर में जो आपका सवाल है कि किस तरह से लोगों को करना चाहिए एंड मैनेज कैसे होते हैं, तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द सिम्टम्स एंड द ब्लड रिपोर्ट्स। ब्लड रिपोर्ट्स में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा आएगा तो देन यू हैव टू गो फॉर स्टेरॉइड्स, एंड अगर स्टेरॉइड्स लगेंगे, एंटीवायरल लगेगा, तो आपके चांसेस ऑफ रिकवरी तेज हो जाते हैं। बट स्टेरॉइड्स आर नॉट रियली एडवाइज्ड इन शुगर पेशेंट्स। शुगर पेशेंट्स में अगर हो भी स्टेरॉइड लगाना भी पड़े तो इंसुलिन भी साथ लगानी पड़ती है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द डॉक्टर्स, क्योंकि मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ। तो हमारे यहाँ जितनी जो चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं वो सारी पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए की जाती हैं। उसकी ब्लड रिपोर्ट्स में अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको डेफिनेटली स्टेरॉइड्स लगते हैं, डेक्सामेथाजोन लगता है, उसको प्रेडनिसोलोन लगता है, और ये स्टेरॉइड्स के बाद उनकी रिपोर्ट्स को एवेल्युएट किया जाता है कि इन्फेक्शन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंटीवायरल्स के बाद भी देखा जाता है कि उनका इन्फेक्शन कम हो रहा है या नहीं। अगर इन्फेक्शन कम हो रहा हो तो उसमें ये घर पे ही ट्रीट हो रहे होते हैं, एंड ये ओरल स्टेरॉइड्स पे। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट माय फादर एंड इफ आई टॉक अबाउट माय सिस्टर, तो इनके ट्रीटमेंट्स में स्टेरॉइड्स थे, एंड इनको घर पे ही दिए गए हैं। एंड इसमें थोड़ा सा एक तो कॉम्प्लिकेशंस आई थी मेरे फादर के केस में, जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, बट otherwise it was not an issue। घर पे definitely manage हो सकते हैं if the cases are mild and if the blood reports are not that bad। अगर ब्लड रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बुरी हो तो फिर उसमें डी डाइमर्स के लेवल्स होते हैं। डी डाइमर के जो लेवल होते हैं वो आपके ब्लड के अंदर थिकनेस को, कोगुलेशन को, आपकी ब्लड के अंदर जैसे कहते हैं कि क्लॉटिंग को एक इंडिकेट करते हैं, आपके प्लेटलेट्स के लेवल्स, आपके लिम्फोसाइट्स के लेवल्स। ये सारा एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है। ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करती हैं कि आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा होगा, अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नमूनिया की तरफ जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये इन्फेक्शन किसी और तरफ जा रहा है, तो आपको एंटीबायोटिक भी साथ दी जा रही होती है ताकि उसको भी किया जाए कंट्रोल। तो घर पे लोग बहुत सारे ट्रीट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि आपकी जो एक्टिविटी है उसको देखा जाए इन रेलेवेंस टू द ब्लड रिपोर्ट। अगर ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो फिर ये घर पे ट्रीट हो जाता है। अगर वैल्यूज बढ़ रही हो, आईवी ड्रिप्स की ज़रूरत हो या हॉस्पिटल के स्टाफ की ज़रूरत हो, देन यू डेफिनेटली हैव टू गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल।
Okay. What do you think? Like, like आपने इतनी बड़ी community build की है, and people are getting so much help from there. Like all their questions, there are doctors who are answering those questions. There are people who are donating plasma, and like you have created a channel completely. जिसपे अगर कोई Yeah. मसला होता है, किसी को इशू होता है, they know that they can log into your Facebook group and they can get their answers. अच्छा, तो Yeah. as a company, as a responsible company, Rion Energy, we take a lot of responsibility for spreading awareness about COVID as well, because of course Mm-hmm. it's not an infection that is affecting individual people. It's affecting organizations, it's affecting businesses, it's affecting industries, it's affecting each and every one, employees, homes, everything. So ये जो लॉकडाउन लगता है और लेस वर्किंग आवर्स होते हैं, and there are a lot of organizations I feel that have played an immense and incredible role in spreading COVID awareness. So how do you think you also would have collaborated with a lot of brands who have been trying to do this? So what your take on this? Brands और क्या कर सकते हैं? ब्रांड्स ने काफ़ी काफ़ी किया ऑलरेडी, एंड मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट रियॉन एनर्जी ने भी काफ़ी काम किया है. डेफिनेटली इफ यू आर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो, तो आपकी जो ऑडियंस है उस तक अगर कोई दो चीज़ें भी पहुंच जाती हैं, एंड इफ दे आर एक्चुअली गेटिंग नॉलेज आउट ऑफ इट, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा है. तो डेफिनेटली इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने कोलैबोरेट भी किया हमारे साथ आईआरडी पाकिस्तान ने कोलैबोरेट किया है. उन्होंने अपनी ऑक्सीजन की थेरेपी मॉडल को काफ़ी प्रमोट किया है. दे आर गिविंग फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड फ्री ट्रेनिंग ऑल दीज people across Karachi to गिव ऑक्सीजन एट देयर क्लिनिक्स. ये डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनके छोटे छोटे क्लिनिक्स के ऊपर ही ऑक्सीजन थेरेपी कर दी जाए. देन इनकी जो बाइकिया ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है, बाइकिया लाहौर से हमें कोलैबोरेट करते हुए उन्होंने ऑफर दिया है कि इफ समवन इज फ्रॉम कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स, दे कैन यूज अ कोड एंड दे कैन जस्ट गेट एनीथिंग फ्रॉम फार्मेसीज, और कहीं से कोई भी डिलीवरी करवानी हो तो वो एक कोड यूज करके 50% डिस्काउंट ले सकते हैं. तो ब्रांड्स आर कमिंग इनटू एक्शन, बट ये है कि हमें जो मेजर फोकस करना है वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के थ्रू एक वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करने की जरूरत है. वर्ड ऑफ माउथ जनरेट ऐसे ही होगा कि आप उनको मैक्सिमम अवेयरनेस दें एंड एम्पैथी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा दें, ताकि उन लोगों को तक ये एहसास ज़रूर हो कि अगर उनकी विसिनिटी में कोई बंदा कोविड अफेक्टेड है तो उससे भागने की बजाय उससे सपोर्ट करने की कोशिश करें. यू कैन गेट ऑल दीज पीपीज एंड किट्स फ्रॉम अस. यू कैन गेट ऑल दीज किट्स फ्रॉम JDC फाउंडेशन एज वेल. वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. जफर अब्बास हैज आस्क्ड अस कि अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो लेट मी नो. तो ये सारा जब इक्विपमेंट आपके पास होगा तो यू विल बी एबल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द कम्युनिटी. अदर देन दैट आई थिंक हमारे यहाँ एक कैरियर जो मैं इंडिकेट करना चाहूँगा, हमारे स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक हमारे स्कूल्स और हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत बड़े कैरियर में हो सकते हैं. तो अगर हमारे यहाँ बच्चों को थोड़ा सा लिमिट किया जाए घरों के अंदर और उनको बाहर एक्सपोज ना किया जाए तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि वो मास्क बहुत ज़्यादा नहीं पहन सकते, ना ही उनको सेंस होती है, ना ही वो आप उनको फोर्स कर सकते हैं कि वो मास्क पहन के रखें. वी डोंट रियली नो कि उनको ब्रीदिंग उनके रेट्स क्या चल रहे हैं. वी डोंट रियली नो कि उनको कितना उसमें मुश्किल होती है. तो द बेस्ट आइडिया इज कि उनको घर में लिमिट किया जाए मैक्सिमम जितना हो सकता है. ऑफ कोर्स हर किसी के लिए इतना पॉसिबल भी नहीं होता, बट जितना हो सकता है ताकि एक्सपोजर वहाँ से कम हो. ये सारी एफर्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करेंगी इस पूरे पेंडेमिक को कंट्रोल करने में. थैंक यू सो मच सुरेश. एक और सवाल एम्पैथी से निकलता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस should show employees, everyone of us should ingrain empathy in our general demeanor. ठीक है. So सवाल ये है कि मेंटल हेल्थ के हवाले से जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो कोविड से
जो सेहतियाब हो गए हैं या जिन्हें अभी what people who are going through COVID, how important is mental health awareness? How important is mental health support for them? And what are the organizations and that are actually extending that arm out? And और क्या-क्या avenues हैं for these people to go to in case of depression, in case of anxiety, in case of panic attacks? Like, you know, there are a lot of forms of mental health issues जो अभी हो रहे हैं COVID True. sufferers को. So how should we help them cope up with those elements? I guess the best thing is कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा मसरूफ़ रख सकते हैं मसरूफ़ रखें, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है Yeah. कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फ्री रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को आपका जो ब्रेन है इट स्टार्ट्स एक्टिंग नेगेटिवली, आपके यहाँ नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं एंड the best thing that you can do is find the best thing जो आपको शौक है, जो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, जो आप सीखेंगे तो आप कोई चेंज ला सकेंगे अपनी ज़िंदगी में या किसी और की ज़िंदगी में. एंड इफ़ यू कैन डू दैट तो बस अपना वक्त उस पर ज़्यादा गुजारें. इफ़ यू टॉक अबाउट माई मेंटल हेल्थ, तो बिफोर दिस ग्रुप आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ क्राइसिस, जिसकी वजह से I thought कि I need to do something about it and अपने आप को satisfy करना ज़रूरी है. Mental satisfaction इस वक्त जितनी ज़्यादा मैं फोकस करूँ उतनी ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होगी. तो मुझे लोगों की हेल्प करने में काफ़ी mental peace मिलता है. And if someone gets help from the forum, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने किसी के फैमिली को बचाने में एक रोल प्ले किया. एंड द थॉट ऑफ दिस मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है, मुझे काफ़ी एक चैनल देती है कि मुझे अपनी जो एनर्जी है, अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो उनको भी मुझे चैनलाइज किस तरह करके लेके आना है और इस फोकस के ऊपर रहना है कि हाउ कैन आई हेल्प पीपल एंड लोगों को किस जगह पर मेरी ज़रूरत है. इवन व्हेन माय फैमिली वाज गोइंग थ्रू कोविड, I was actually helping people across Pakistan. I was trying कि इनके मसले भी हल किए जाएं, क्योंकि उनको मुझसे उम्मीद है एंड आई रियली वांट कि मैं लोगों को किसी न किसी तरह इस मसले से निकालूं. किसी के फादर का एक इशू था एंड उनको काफ़ी ज़्यादा सवेयर कोविड था. उसी तरह ही हम लोग हम अब ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आई वाज looking for some injections for my own family, but when I got a call कि उनको ज़रूरत है, तो मैंने वो इंजेक्शंस जो लिए हुए थे I donated it. वो सारे के सारे पैक को मैंने डोनेट किया एंड देन आई थॉट कि मुझे कहीं और से शायद मिल जाए क्योंकि मेरे रिसोर्सेज हैं, बट इस बंदे के रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा. वही होता है, आप एक हाथ बढ़ाते हैं किसी बंदे की तरफ, वो अल्लाह का बंदा होता है, वो आपकी तरफ अल्लाह ने भेजा होता है, तो वो आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला किसी और हाथ से आपकी हेल्प कर देता है. तो दैट इज समथिंग जो जिसमें मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है. एंड if I talk about something that has happened recently, तो देयर वाज अ केस जिसमें एक यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा फीस देनी थी एंड मैं उसको काफ़ी देर से सपोर्ट कर रहा था, बट दिस टाइम आई थॉट कि उसको थोड़ा सा उसके हाल पे छोड़ा जाए एंड लेट हर वर्क फॉर इट. शायद वो खुद कोई ना कोई ढूंढ ले कोई डोनर जो उसको हेल्प कर दे. बट जब नहीं हो सका तो उसका वो टाइम आ गया कि उसको यूनिवर्सिटी ने सेपरेशन लेटर्स इशू करने शुरू कर दिए कि आप अगर फीस नहीं इशू देंगी तो आपको नहीं देगा. अब जो वो फीस थी पूरे सेमेस्टर की, आई थॉट कि मैं अपनी जेब से दे देता हूँ. अच्छा, जिस वक्त ये मैंने सोचा, अगले 1 घंटे के अंदर मुझे एक डोनर का मैसेज आ गया कि मैंने ज़कात एक सेव की हुई है, मुझे बता देना अगर कहीं पे लगानी है तो मैं लगा दूंगा. तो आई टोल्ड देम कि ये केस है एंड हाउ यू कैन हेल्प हर. ये पूरा इसका रूट है, दिस इज द फी वाउचर एंड यू कैन पे दिस फी. तो उसी वक्त ही उसका वो सारा मामला क्लियर हो गया.
दिस इज ऑल अबाउट योर नियत। मैं तो इसके ऊपर बहुत पहले इतना शायद बिलीव नहीं करता था, बट मेरा इस सारे प्रोसेस के बाद काफी ज्यादा स्ट्रांग बिलीफ है कि अगर आप एक हाथ से देने की बात करते हैं तो अल्लाह ताला आपको दूसरे हाथ में कुछ ना कुछ थमा जरूर देता है कि और दो, लोगों की मदद जरूर करो। Yeah, the world works in mysterious ways. Yeah. So, अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि how does it feel to be able to build a community that is helping so many people around us? Like, did you expect it to grow this much? नहीं, आई नेवर थॉट कि ये 8 से 10,000 मेंबर्स से ज्यादा होगी। आई ऑलवेज थॉट कि ये एक छोटा सा ग्रुप बनेगा एंड आई वुड बी एबल टू मैनेज इट। ये कोई उस तरह की कोई चीज नहीं बनेगी, तो ये आज बन चुकी है। आई वॉज नॉट अच्छा, इसमें भी एक थॉट प्रोसेस का रीजन ये था कि आई नेवर थॉट कि इतने बुरे हालात भी हुए हैं पाकिस्तान के। आई थॉट कि नॉर्मल सा है, लोगों को शायद मदद की जरूरत है, चलो देयर शुड बी अ फोरम, ठीक है, उसको नेशनल लेवल पे बंदा एक्टिवेट कर दे कि कहीं से भी कोई ज्वाइन कर ले। 8-10 हज़ार मेंबर्स हो जाएंगे मैक्सिमम, और वो भी मैंने सोचा था कि 1 साल पूरा लगेगा उसमें, तब कहीं 8-10 हज़ार मेंबर्स होंगे। तो मुझे नहीं पता था कि वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर वो 2-2.5 लाख की कम्युनिटी बन जाएगी, और अब वो 3,40,000 पे पहुंच। It feels great. I think phenomenal. It feels great. इसमें एक ऐसे लगता है कि लोगों को आपसे उम्मीद है कोई, और लोग इस वजह से आए हैं, they want to get help from this forum, and adding to that, people really want to help on this forum. खुद से बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं डिफरेंट केसेस को। कुछ के लिए खुद वॉलंटियर करते हैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए, कुछ के लिए खुद ब्लड के लिए करते हैं, एंड देन कुछ लोगों के लिए वो मॉनेटरी डोनेशंस भी देते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर देते हैं, फीस भी दे देते हैं, फूड डिलीवरी कर देते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी वेज पीपल आर एक्चुअली हेल्पिंग इन दिस फोरम। और पाकिस्तान इज फेमस फॉर बीइंग अ जनरस नेशन, तो आई कैन वेरी वेल सी कि पाकिस्तान के अंदर वाकई जज्बा बहुत है। जब इनको चैनलाइज कर दिया जाए तो ये पूरी एनर्जी एक तरफ लगा देते हैं। That's true, that's true. वैक्सीनेशन का भी क्या ख्याल है आपका? जो हमारा गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन कर रही है, हाउ गुड इट्स टर्निंग आउट टू बी, हाउ इफेक्टिव इट इज, कितने लोग जा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इनहिबिशंस कितनी है लोगों की? एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर हैं। पाकिस्तान की शुरू में वैक्सीनेशन रेट काफ़ी स्लो था, बट ग्रेजुअली इट इज़ इम्प्रूविंग। वी कैन सी के हमारे यहाँ शुरू में जब 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोगों से ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं हो रही थी, आज वो 1-1 लाख 2-2 लाख के टारगेट्स तक भी पहुँच रही हैं। एंड वी कैन डेफिनेटली सी हाउ चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। वरना आप यूरोप की कई कंट्रीज में देखें कि किस तरह से लोग अभी तक अपने 40s 50s में भी हैं, एंड देर एक्चुअली वेटिंग कि उनकी बारी कब आएगी। ये तो यूके, यूएस और कनाडा, ये मुल्क हैं जो थोड़े थोड़े से एक्टिव हैं। आई एम नॉट श्योर कनाडा का भी क्या रेट है, बट यूएस और यूके ने काफ़ी एग्रेसिवली इसको काम किया है। बट बाकी यूरोप जो है वो देर स्टिल वेटिंग। इवन माय कजन हु इज इन हिज लेट 40s, ही केम बैक फ्रॉम स्वीडन, और उसकी वैक्सीनेशन का कोई जिक्र नहीं था। वो कह रहा था कि अभी हमारे यहाँ कोई वैक्सीनेशन को इस एज ग्रुप में अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस कराया गया। तो पाकिस्तान में अगर 50s के बाद अब 40s की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, एंड अभी हमारे यहाँ 12 लाख डोजेज आए हैं एक वैक्सीन के, फिर हमारी आगे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी शुरू हो गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में। आई कैन वेरी वेल सी कि पाकिस्तान एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैज बीन एबल टू मैनेज एवरीथिंग वेरी वेल। काफी बेहतर मैनेज किया है अभी तक भी, एंड द क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट। इन्होंने इस क्राइसिस को काफी कंट्रोल किया है। हमारे वो हालात अभी तक भी नहीं हुए जितने बुरे हालात पूरी दुनिया के थे। So I think eventually support system है यहाँ पे. The only thing that remains to be done is for every one of us to take individual responsibility of our actions, to be responsible, to have safe events, to meet people, but with safety protocols, wear a mask, sanitize your hands. I think that's something that is going to be there for a very, very long time to come. Because it's an infectious virus, it's not going anywhere anytime soon. It's not like
अभी 1 महीना कर लेते हैं, लॉकडाउन के बाद सही हो जाएगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर श्योर. True. So True. this is the new way of life. This is the new normal for all of us. Thank you, Suresh. Yeah. Thank you so much. Any parting Welcome. comments on Eid? लोग किस तरह मनाएं? ईद को अगर अच्छा मनाना चाहते हैं और ईद के बाद खुशियां ही देखना चाहते हैं तो अपने करीबी लोगों से दूर ही रहें. यही मेरा मैसेज है, क्योंकि जितना हमने देखा है शादियों की वजह से काफी ज्यादा डिजास्टर्स आए हैं पिछले सीजन में. तो डेफिनेटली नो वन वांट्स टू सी देयर लव्ड वंस गोइंग थ्रू दिस. ये कोविड बहुत जालिम चीज है. बेहतर ये है कि ईद पे अगर मिलना भी है तो ओपन स्पेसेस में मिलें एंड देन जस्ट ट्राई टू स्टे अवे एज मच एज पॉसिबल, ताकि ईद के बाद वाले दिन अगली ईदें भी बहुत सारे लोग देख सकें. Thank you so much, Suresh, for joining us today. Thank you very much for having me. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Love.